Hello, Madhusmita, you have joined? Madhusmita, are you there? Okay, the the name of the chapter is capital structure. Basically, the objective of learning objective of this chapter is Madhusmita, you have joined? Sir. You are so late. You should join on time. You tell me one thing. What is capital structure? What comes to your mind when you hear the word capital structure? Madhusmita, Yes, when you sir. hear when you hear the word capital structure, what comes to your mind as an MBA student? Sir, by capital, Now see, organization requires funds to run and maintain the business. To run and maintain the business. So the required funds may be raised from either from the short-term sources or from the long-term sources or a combination of both. ठीक है? So generally capital is raised from two prime sources. One is equity and another is debt. Capital is raised from two prime sources. What are the two prime sources? One is equity and another is debt. So as a finance manager, you have to see what decision should be taken, either to raise fund through the equity capital or go for debt. For that, you have to do calculation like how much dividend is required to be paid to the shareholders. Okay, in case of equity, and in case of debt, you need to calculate how much interest you will be paying to your lender. Okay, if you have brought a loan from any bank or any financial organization, then how much interest you are going to pay. So in the last class we have seen that undercapitalization and overcapitalization. Difference was that by implying, let's say 9 lakhs, you are earning a profit of rupees 50,000 only, while the market is giving how much? 90,000, 10%. So similarly, here also you have to take a decision like if you are raising the funds through equity capital by issuing shares, how much dividend you are paying. Dividend is a cost to the company. Similarly, how much debt should be taken from the market, so that how much interest you are paying. These decisions has to be taken by the finance manager. Capital structure basically refers to the mix of long-term sources of funds such as equity share capital, reserves and surplus, debenture, long-term debt. Okay, so there is one formula is there. We have started a new chapter, capital structure, unit 2. unit 3. Unit 3 is there or Yes, unit 2? it's unit 3. Okay. Unit 3, if it is unit 3. No, no, it's unit 2. I have syllabus in my hand. Unit 2 is Sorry, capital sir. structure. It's capital structure. Okay, whatever unit it is, we have to study this. This is there in the syllabus. Okay. So be on time. Okay. Now, capital structure is the part of the financial structure which represents long-term sources. It is generally defined to include only long-term debt and total stockholders investment. Okay. Now there is one formula is there. So capital structure indicated by the following equation. Equation is capital structure equals long-term debt plus preferred stock plus net worth, or you can say that capital structure
equals total asset minus current liabilities. So capital structure equals to total assets minus current liabilities. So whatever current liability, if you deduct from the total assets, whatever is left, that is your capital structure. Understood or not? Yes, sir. Sir, here, what do you mean by preferred stock? Like, I will explain it to you later on. Okay. okay, Right sir. now you will not understand it. Thus, the capital structure of a firm consists of shareholders fund and debt. Shareholders fund. Okay, long term debt. Here we are having long term debt plus preferred stock plus net worth. तो क्या हो गया ये? The capital structure of a firm consists of shareholders फंड, शेयर होल्डर ने जितना फंड दिया है वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, एंड जो लाइबिलिटी है डेट, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल टू टोटल एसेट्स, जितना भी आपका टोटल है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, creditors, anything outstanding means you have to pay, like wages and salary, you have not paid, that liability, that has to be deducted. The inherent financial stability of an enterprise and risk of insolvency to which it is exposed are primarily dependent on the sources of its funds as well as the type of assets it holds. ठीक है, अब फीचर ऑफ एन अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं हम लोग. An appropriate capital structure should have the following features. Number one is profitability और return. आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि उस पर कितना प्रॉफिट आ रहा है या कितना रिटर्न आ रहा है वो आपको कैलकुलेट करना होता है. As you have seen in the above discussion that appropriate capital structure is one which is most advantageous with a constant maximum use of leverage. लेवरेज का हम लोग देखेंगे आगे. लेवरेज क्या है? फाइनेंशियल लेवरेज होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज होता है, वो आगे देखेंगे हम लोग. एट ए मिनिमम कॉस्ट, आपको मिनिमम कॉस्ट पे जो है कैपिटल स्ट्रक्चर को ऐसा बनाना है कि मिनिमम कॉस्ट पे आप कैपिटल एक्वायर कर रहे हैं. इन अदर वर्ड्स, इट शुड जनरेट मैक्सिमम रिटर्न्स. मिनिमम कॉस्ट जहां पे आया तो मैक्सिमम कॉस्ट, समझ में आ रहा बात? मिनिमम कॉस्ट जहां पे लगा और मैक्सिमम रिटर्न्स देना है, ये आपको देखना होगा. टू द ओनर्स विदाउट एडिंग एडिशनल कॉस्ट. तो सबसे पहला क्या देखना है, जो फीचर है इसका कैपिटल स्ट्रक्चर का कैसा होना चाहिए, वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट में होना चाहिए, रिटर्न भी होना चाहिए, गुड रिटर्न, अच्छा रिटर्न होना चाहिए. ठीक है, विदाउट एडिंग एनी एडिशनल कॉस्ट. नेक्स्ट पॉइंट है अपना सॉल्वेंसी और रिस्क. सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है बताइए? Solvency. आपने सुना होगा कि कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, बैंकरप्ट हो गई, हाँ, और बैंकरप्ट सर सुने, बट सॉल्वेंसी मतलब नहीं सुने हैं. सॉल्वेंसी मतलब मिनिमम लिक्विडिटी यू शुड मेंटेन. ठीक है, मिनिमम लिक्विडिटी की द यूज ऑफ मोर और एक्सेसिव डेट थ्रेटन्स द सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म. आपका फर्म या आपका कंपनी इतना सॉल्वेंट नहीं है कि जो डे टू डे लायबिलिटी है या स्टाफ का सैलरी है उसको हम पे नहीं कर पा रहे हैं, डे टू डे मेंटेनेंस है या ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रिस्क में आ जाएगा कंपनी. तो इतना लोन नहीं ले लीजिए कि उसको आप चुकाते चुकाते आपका सारा पैसा, इंटरेस्ट चुकाते और इंस्टॉलमेंट चुकाते ही आपका सारा कैपिटल खत्म हो जा रहा है. तो एक्सेसिव डेट जो है वो थ्रेटन्स टू द सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म. मतलब फर्म मेरा सॉल्वेंट नहीं रहेगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा, उस चीज का खतरा है, यही कहा जा रहा है. तो डेट शुड बी यूज्ड टिल द पॉइंट वेयर डेट डज नॉट एड सिग्निफिकेंट रिस्क. अगर आपका डेट ही इतना हो गया कि आप लोन चुकाते चुकाते थक गए तो कंपनी क्या हो जाएगी? बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, कंपनी से हाथ धोना पड़ेगा. तो वो भी आपको एज ए फाइनेंस मैनेजर देखना होगा. देन फ्लेक्सिबिलिटी.
Next point is flexibility. Flexible capital structure means it should allow the existing capital structure to change according to the changing conditions without increasing cost. अब देखिए बहुत सारा चीज ऐसा है जो अपने हाथ में नहीं है। अब अपने हाथ में क्या नहीं है? महंगाई बढ़ गया, आरबीआई ने क्या किया? अपना बैंक रेट घटा दिया, बढ़ा दिया। आपने सुना होगा ना न्यूज में कभी कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, Report. Yes, sir. रिवर्स रेपो रेट घटा दिया, ऐसा सुना होगा, बैंक रेट बढ़ा दिया। तो ये सब का ईएमआई पे असर पड़ता है। ठीक है, अगर आपने होम लोन लिया है या घर में किसी ने लिया है या कोई और लोन लिया, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है लोन पे चलता है, बहुत सारा लोन लेता है वो लोग, क्योंकि एक्सपैंड करना है बिजनेस को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो उसके लिए लोन चाहिए होता है। तो लोन चाहिए होता है तो, लेकिन अपने हाथ में है कि लोन लेना, लेकिन लोन का रेट क्या होगा, इट मे चेंज, दैट डिपेंड्स अपॉन द आरबीआई डिसीजन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डिसीजन होता है उसके हिसाब से, मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है आरबीआई का, उसके हिसाब से वो बैंक का रेट जो है वो चेंज होता है, बढ़ता है, बेस रेट, रेपो रेट, रिवर्स, ये सब आप देखिए, ये सब आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कभी आएगा सिलेबस में, कुछ ऐसा रहेगा तो मैं डिस्कस करूंगा जरूर। ठीक है, तो उसके साथ साथ में क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है, या मान लीजिए कि आपका ऐसा कंपनी है कि एक्सपोर्ट करते हैं आप, ठीक है, या इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो दूसरा कंट्री से आपका ट्रांजैक्शन होता है, दूसरा कंट्री से करते हैं ट्रांजैक्शन, तो डॉलर का जो रेट है वो बढ़ गया, घट गया। ठीक है, तो इकोनॉमिक कंडीशन है। या मान लीजिए गवर्नमेंट अनस्टेबल हो गया, या दूसरे कंट्री में कुछ कुछ हो गया, तेल, किसी कंपनी ने तेल का जो ये है, जो तेल आता है ना, जो ऑयल है, ठीक है, ओपेक है, ओपेक इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल, यू मस्ट हैव हर्ड ओपेक। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि तेल तेल से बहुत सारा डिसीजन होता है, इकोनॉमिक डिसीजन, या गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बनाया, तो ये अपने हाथ में नहीं है, दिस इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। व्हाट यू कैन कंट्रोल योर ओन बिजनेस, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू एडजस्ट। कि अगर इकोनॉमिक सिनेरियो कुछ खराब भी हो गया तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी इतना होना चाहिए कि अपना कैपिटल स्ट्रक्चर को आप बढ़ा सके या घटा सके, चेंज कर पाए उसमें। इट शुड ऑल्सो बी पॉसिबल फॉर द फर्म टू प्रोवाइड फंड्स whenever needed to finance its possible activities. Firm should also repay the funds not required. Now next point is conservation or capacity. ठीक है, तो capital should be conservative in sense that the debt capacity of a firm should not be exceeded. मतलब इतना कंजर्वेटिज्म अप्रोच में चलना चाहिए। सब अप्रोच है, फाइनेंस का अप्रोच है कंजर्वेटिज्म अप्रोच में, कि आपको जो डेट है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो लिमिट है उससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी डिटरमाइंड विद इन द डेट कैपेसिटी ऑफ एंड नॉट बियॉन्ड फर्म्स कैपेसिटी। अब इसको ऐसे समझिए, आपके घर में आपके फॉर एग्जाम्पल 30 लाख भी हो सकता है, मान लीजिए 30, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? हाँ सर। Suppose your monthly salary is rupees 30,000 per month, and you have taken a loan amount, uh, I mean very huge amount of loan you have taken. I don't know, you have mortgaged your assets, maybe car or house also, and you are planning to buy another house, or you are planning to buy one land property. For that you have taken loan, and your EMI is, let's say, 35,000 rupees per month. Would you be in a position to pay your obligation? Not at all, sir. Because No, because salary is only 30,000 and EMI is coming out to be 35,000. How would it be possible? so there will be a shortfall of rupees 5,000. So Yes, that's sir. what they are. So that's what they are saying, कि अपना कैपेसिटी को, अपना क्षमता को जानिए और कंजर्वेटिविज्म अप्रोच में जाइए। मान लीजिए कि 30,000 सैलरी है तो आप 20,000 तक अफोर्ड कर सकते हैं, 15,000 तक कर सकते हैं। घर चलाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, सारे हाँ, सर। पैसे आप उसी में डाल दोगे तो आप कहाँ से फिर घर चलाओगे?
तो वही कह रहा है, बिजनेस भी वही है, बिजनेस में भी उसी तरह से आपको सोचना है जैसे घर में सोचते हैं, ठीक है, वही बताया जा रहा है। देन कंट्रोल इज देयर, आप जो लोन ले रहे हैं, यूज ऑफ मोर इक्विटी मे लीड टू लूज द कंट्रोल ऑन कंपनी। आप ज्यादा से ज्यादा इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी के ओनर बनेंगे। इक्विटी शेयर हाँ सर। होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। हाँ सर। तो जितना ज्यादा आप इक्विटी शेयर कैपिटल आप जो है सो इशू करेंगे, उतने लोग आपके कंपनी के मालिक बनेंगे। अगर आपने एक शेयर खरीदा है इन्फोसिस का, तो यू आर द ओनर ऑफ द इन्फोसिस इक्विवेलेंट टू वन शेयर। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो Yes sir. use of more equity may lead to lose the control on the company. The owners of competitors from closely held firms are very particularly concerned about the dilution of control. उसमें क्या होगा अब मैं बताता हूँ dilution. Hence, construction of capital structure should not involve the risk of loss of control on the firm. आपने कोई कंपनी बनाया, शुरुआत से आपने लेट से आपने मधुस्मिता भुजिया कंपनी कुछ ऐसा बनाया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वो ऐसा भुजिया कंपनी हो गया कि बहुत चल गया मार्केट में, पूरा वो मार्केट में बस मधुस्मिता भुजिया कंपनी का ही नाम है, उसी का ब्रांड चलता है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपको कैपिटल का जरूरत है और आप चाहते हैं और एक्सपेंड करें, इसको बाहर में भेजे विदेश में, तो आपने क्या किया, इक्विटी शेयर इशू कर दिया, आपने ढेर सारा इशू कर दिया, और ऐसा है कि आपका ब्रांड बहुत लोगों ने वो इक्विटी शेयर को खरीद भी लिया, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो अभी आपका क्या होगा, कंपनी का ओनर्स बहुत लोग हो जाएंगे, तो कोई इसमें ऐसा कंपनी रहेगा कि मैक्सिमम शेयर खरीद लेगा। तो जब खरीद लेगा तो वो आपके जगह वो मालिक बन जाएगा, या फिर आपका जो ओनरशिप है उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा आपको, फिर उसको भी उसमें भागीदारी देना पड़ेगा कंपनी में, अच्छा खासा भागीदारी देना पड़ेगा। तो फिर आप अपने मन से कैसे चलाइएगा कंपनी? आप बात समझ रहे हैं? हाँ सर। आपने कंपनी को बनाया, कंपनी जस्ट लाइक अ बेबी, ओके, आफ्टर ग्रोइंग यू हैव इशूड सो मच ऑफ शेयर कैपिटल। अब आप उसको बेबी को अभी आप कंट्रोल कर रहे हैं, चला रहे हैं, जब वो ग्रोथ कर गया तो फिर दूसरा आदमी आ जाएगा, वो अपने हिसाब से बोलेगा कि भाई मेरा इतना शेयर है इसमें, मैनेजमेंट का जो कंट्रोलिंग पावर है उसमें मेरा भी आदमी रहेगा, और आप अकेले कुछ फैसला नहीं ले सकते हैं, उसमें उसका भी कंसेंट जरूरी है। तो यही कह रहा है कि कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखना चाहिए कि आपका डेट इक्विटी का या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, उस हिसाब से। अब दूसरा पॉइंट है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। इन टेकिंग अ फाइनेंशियल डिसीजन, द फाइनेंशियल मैनेजर्स जॉब इज टू कम आउट विद एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम वर्ड यू नो? Yes sir. क्या होता है बताइए? So proper according to the situation. मान Yes. लीजिए आपको क्षमता है 8 घंटा पढ़ने का, और आप पढ़ रहे हैं 2 घंटा, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर सेल्फ इन ऑप्टिमम मैनर। डिड यू गेट माई पॉइंट? Yes sir. आप अगर कुछ काम कर सकते हैं 8 घंटा और काम कर रहे हैं 4 घंटा, तो 4 घंटा आप नहीं कर रहे हैं, यानी कि 4 घंटा और कर सकते हैं आप, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं अपने आप को आप। आया बात समझ में? हाँ सर। तो फाइनेंस मैनेजर जॉब इज टू कम आउट विद एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कैपिटल स्ट्रक्चर एट द लेवल ऑफ डेट इक्विटी प्रोपोर्शन। डेट का और इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, ताकि हमारा जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है 50-50% होना चाहिए, 50% डेट 50% इक्विटी, या 60% इक्विटी 40% डेट। ये आपको कैलकुलेट करना होगा। इक्विटी से जाएंगे तो कितना डिविडेंड देना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को क्या देना पड़ेगा, अगर हम डेट के थ्रू जाते हैं तो डेट में इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ेगा, ये आपको ऑप्टिमम एक उसका रेशियो बनाना होगा, प्रोपोर्शन में वो लेना होगा आपको। where the market value per share is maximum and the cost of capital is minimum, ऐसा आपको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका, जहां की मार्केट वैल्यू जो पर शेयर है मैक्सिमम होना चाहिए एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम। आया समझ में? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स व्हाट? the dividend that you are paying in case of equity, and
the installment as well as the rate of interest that you are paying through the debt holder, ठीक है, जहां से आपने लोन लिया है, तो ये आपका कॉस्ट होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मधुस्मिता, टेल मी. हेलो, I have discussed cost of capital. What is cost of capital? You haven't understood? Madhusmita? सर जितना हम लोग जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि सर आपने अभी एग्जांपल से पता, जितना अपनी कैपेसिटी है या पोटेंशियल है, उससे अगर कम रेट में अगर रिटर्न या कोई भी प्रॉफिट अगर आता तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब हुआ कि यही तो मैं बताया कि आप जो इक्विटी रेज कर रहे हैं, इक्विटी के थ्रू जो आप फंड्स रेज कर रहे हैं, उस केस में डिविडेंड देना होगा आपको. और डेट के केस में जो आप फंड रेज कर रहे हैं डेट के थ्रू, तो आपको इंटरेस्ट देना होगा. ठीक है, ये दोनों ही लायबिलिटी है आपका. तो ये लायबिलिटी आपका मिनिमम होना चाहिए. और ये जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. तो ये दोनों ही चीज क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. हमने जो कैपिटल लाया है अपने बिजनेस में, उसका कॉस्टिंग आया समझ में. हाँ सर. जैसे आप बैंक से लोन ले रहे हैं, घर खरीदने के लिए आपने लिया है लोन, या गाड़ी खरीदने के लिए है. तो अभी आप मान लीजिए आपने स्कूटी खरीदा है, एक नया स्कूटी. ठीक है, स्कूटी का दाम है लेट्स से फॉर 80,000, और आपको लग रहा है 1 लाख रुपया. तो 80,000 अगर आप कैश में खरीदते हैं तो 80,000 में स्कूटी आ जाएगा. आ रहा है समझ में. लेकिन अगर आप EMI पे लेते हैं तो 1 लाख लगेगा, तो 20,000 एक्स्ट्रा लगा उसमें. तो दैट 20,000 इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. 80,000 you have taken from bank, and bank is levying or charging 20,000 extra. That 20,000 is your cost of capital for buying a scooty. You understood or not, tell me. नो सर. यस. अरे वाह, वही तो मैं बता रहा हूँ कि आप जो मैंने बताया कि आप स्कूटी खरीद रहे हैं 80,000, आप कैश में खरीदिए, घर से पैसा ले जाइए, 80,000 में स्कूटी घर ले आइए. हाँ. आप गए HDFC बैंक के पास कि भाई मुझे स्कूटी खरीदना है, आप मेरा फाइनेंस कर दो. तो बैंक वाला बोलेगा कि आप जो है, आपको ऐसा इंस्टॉलमेंट वो ये आपका बना देगा, हर महीना ऐसे पेमेंट कीजिए कि आपको टोटल जो कॉस्टिंग पड़ रहा है 1 लाख पड़ रहा है, तो 20,000 एक्स्ट्रा पड़ रहा है उसमें. हाँ सर. दैट 20,000 इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट अमाउंट. आया समझ में. हाँ सर. हाँ, तो 20,000 एक्स्ट्रा लग रहा है ना मुझे. अगर मैं घर से मैं आप चले जाते हैं स्कूटी खरीदने कैश लेके, तो 80,000 में आएगा, और यहाँ पे आपको 1 लाख लग रहा है, तो 20,000 इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यस सर. So similarly in business also, whatever interest you are paying in case of debt, that is your cost of capital. Whatever dividend you are paying, that is your cost of capital. ठीक है. और ये ऐसा होना चाहिए कि मार्केट वैल्यू पर शेयर आपका मैक्सिमम होना चाहिए, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होना चाहिए. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यू अंडरस्टूड. हाँ सर. ठीक है. इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन एन आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर. अब कोई बोलेगा आइडियल क्या होना चाहिए भाई, आइडियल का वो कोई ऐसा मतलब वो ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं है. हर बिजनेस के लिए अलग सिचुएशन हो सकता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि आपका नेचर ऑफ बिजनेस अलग है. एक मैंने एग्जांपल दिया था, आपका मान लीजिए कपड़े का बिजनेस है, वो ड्रेस का, स्कूल ड्रेस का. अभी मैंने एग्जांपल दिया भुजिया का, तो भुजिया एक अलग चीज है, कपड़ा एक अलग चीज है. ठीक है. आप कुछ और बनाते हैं, मान लो आप रसना बनाते हो, तो रसना एक अलग चीज है. रसना का मैक्सिमम बिक्री होगा कब, ये गर्मी महीना में बिक्री होगा. ठंडा में कोई पीता है, नॉर्मली नहीं पीता है, शौक से पीता है. तो हर बिजनेस का अलग नेचर है, हर बिजनेस का अलग डिमांड है, हर बिजनेस का अलग कस्टमर है. तो इसीलिए आप ये कहा गया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या वो होना चाहिए, एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये कोई तय नहीं है. लेकिन स्टील का जो है, मान लीजिए सदाबहार है, एवरग्रीन बिजनेस है,
स्टील। आपको आईटी सेक्टर क्या है, एवरग्रीन बिजनेस है, वो तो हमेशा आईटी सेक्टर चलते रहेगा, प्रोग्रामिंग बनते रहेगा, कोडिंग होते रहेगा। टाटा स्टील एवरग्रीन बिजनेस है, तो वहां का कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा। उसी तरह से कुछ और एक मैं बताना चाहता हूँ, कुछ होता है कैपिटल इंटेंसिव कंपनी, ठीक है। अब मान लीजिए टाटा तो स्टील, हाँ सर। टाटा स्टील इज अ कैपिटल इंटेंसिव कंपनी। टू form a company like Tata Steel, you need to have huge amount of capital, ठीक है। But to start a business of Madhusmita Bhujia company, let's say, you need very small amount of capital, don't you? So the company which requires huge amount of capital, that type of company is called capital intensive company. अब टाटा स्टील जैसा कंपनी खोलने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए। उसी तरह से अगर आप मान लीजिए आईटी कंपनी में है, इन्फोसिस है जैसे, इन्फोसिस जैसा कंपनी खोलने के लिए क्या चाहिए, वहां पर ज्यादा से ज्यादा आदमी चाहिए, टेक्निकल आदमी। टीसीएस जैसा कंपनी, टेक्निकल ब्रांड, तो वहां पे आदमी उसका कैपिटल हो जाएगा। आ रहा है समझ में? हाँ सर। हम्म, ठीक है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन एन आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर। अ कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ इट्स बिजनेस। मैंने कहा ना, नेचर ऑफ इट्स बिजनेस एंड हाउ रिस्की द पर्टिकुलर बिजनेस इज। अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूं। अभी आपने खोल लिया मधुस्मिता लोन कंपनी, सपोज आप पैसा कहीं से जुगाड़ करते हैं, लोन देते हैं लोगों को, गाड़ी लोन, घर लोन, हाँ, कुछ और लोन, प्रॉपर्टी लोन, लोन अगेंस्ट एसेट, वैसे है ना। क्या कंपनी है, मन्नपुरम, क्या एक है, अक्षय कुमार जिसका एडवर्टीजमेंट करता है, गोल्ड लोन। मुथूट फाइनेंस, that is- Muthu Finance is there, then Mannapuram, yeah, Mannapuram company is there. Muthoot Finance is there. They are into loan only. Yep. So for that company also you need to have cash. ठीक है। तो वहां पे रिस्क है, रिस्क अलग है। कोई लोन लिया, लोन लेके भाग गया, आ रहा है समझ में? हाँ सर। लेकिन आपका अगर मान लीजिए भुजिया का कंपनी है, तो भुजिया कितना लेगा, कोई वो नहीं बिकेगा तो अपने आप सड़ जाएगा। लेकिन पैसा सड़ेगा, पैसा तो सड़ेगा ना। कोई लोन ले लिया, लोन लेके गाड़ी ले लिया, गाड़ी घर ले लिया, पैसा लेके भाग गया, नेपाल भाग गया, विदेश भाग गया, ठीक है। तो ये वहां पे रिस्क कितना है, आपको रिस्क भी देखना होगा कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस एज वेल एज द रिस्क, हाउ रिस्की योर बिजनेस इज, द पर्टिकुलर बिजनेस इज, ठीक है। एंड देयरफॉर अ मैटर ऑफ बिजनेस जजमेंट as अच्छा, in optimum capital structure the marginal real cost of each available method of financing is the same, ठीक है। अब देखिए द ऑप्टिमम, ये भी बताया गया है कि द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कीप्स बैलेंस बिटवीन शेयर कैपिटल एंड डेट कैपिटल। वो क्या करता है ऑप्टिमम में, शेयर और जो डेट है, शेयर कैपिटल एंड डेट कैपिटल को एक बैलेंस लेके चलता है। आया समझ में? ये नहीं कि डेट बहुत ज्यादा हो गया तो उससे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, मालूम चलेगा कि कोई बैंक से लोन लिए हैं, बाद में जाके वो बैंक ही मेरा कंपनी को खरीद लिया, या इक्विटी से। तो आपको एक ऑप्टिमम एक आपको मेंटेन करना होगा, उसका एक प्रोपोर्शन। द प्राइमरी रीजन फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेट by an enterprise can be stated as up to a certain point. That is from the point of view of the ownership आप देखिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनरशिप। इतना ना लोन ले लें कि मालूम चलेगा फला आदमी मेरा कंपनी को खरीद लीजिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये रिलायंस जो है, इसका अनिल अंबानी का रिलायंस, याद आ रहा है? सबसे पहले उसी ने लाया था स्मार्टफोन, स्मार्ट नहीं, वो वो था ना एक सिम लाया था रिलायंस का, स्मार्ट रिलायंस का लाया था, मैंने वो फोन सबसे पहले वही आया था। लेकिन कहाँ है आज की डेट में, कहीं नहीं है। उसके बाद रिलायंस का उसका कौन कौन सा कंपनी था, रिलायंस कैपिटल था, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस था, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस था, रिलायंस का ब्रोकिंग था, क्या नहीं था रिलायंस, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में बहुत ज्यादा था। रिलायंस का म्यूचुअल फंड था। बट नाउ डेज निप्पॉन हो गया, रिलायंस हो गया निप्पॉन, ठीक है। क्या हो गया, उसके पास इतना ज्यादा डेट हो गया कि सब कंपनी को उसको बेचना पड़ा। कोई बाहरी आदमी निप्पॉन आकर के खरीद लिया, ठीक है। निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, निप्पॉन जनरल इंश्योरेंस, निप्पॉन
निप्पॉन म्यूचुअल फंड हो गया, उसका जो, तो यही है, आपको डेट देखना होगा कि कितना आप डेट रखते हैं। आपको किशोर बियानी का कंपनी था फ्यूचर ग्रुप, बिग बाजार, याद आ रहा है? बिग बाजार था, हुआ करता था पहले। हाँ सर, बिग बाजार पहले। किसका था? किशोर बियानी का था। उसने स्टार्टिंग से बनाया, एक अलग तरह का रिटेल सेक्टर में बनाया, बिजनेस बनाया, बिग बाजार। बाद में वो बिक गया, बेचना पड़ा इनफैक्ट, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू पे द डेट। तो जिसने उसको डेट दिया था वो बोला कि भाई ठीक है, तुम हटो, अब बिजनेस हमको संभालने दो, तुम बहुत संभाल लिया, ठीक है। तो उसके उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए बेचना पड़ गया। तो ये होता है, इसलिए आपको ऑप्टिमम लेवल में देखना पड़ता है कि इक्विटी का कितना है और डेट का कितना कॉम्बिनेशन रख रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि डेट ज्यादा हो जाए और बिजनेस से हाथ धोना पड़े। अब क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। Capital structure may be determined at the time of promotion of the firm or during the latter stage। मतलब जब बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हैं आप उस टाइम में, या बाद में आप उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं। बट डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ प्रमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी डिजाइन वेरी केयरफुली, ठीक है। अब फैक्टर्स क्या क्या है जो कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को बताता है? पहला फैक्टर है टैक्स बेनिफिट ऑफ डेट। अब देखिए, अब अगर आपने लोन लिया हुआ है तो वहां पर टैक्स बेनिफिट क्या मिलता है उसके बारे में बताया जा रहा है। आ रहा है समझ में मधुस्मिता? हाँ सर, टैक्स नहीं समझ बेनिफिट। में आ रहा तो आप रोक के पूछिए बीच में। इफ यू आर हाँ नॉट सर। गेटिंग एनी पॉइंट देन प्लीज आस्क मी। क्या है टैक्स बेनिफिट ऑफ डेट? डेट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। डेट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? वो चीपेस्ट है, और कहीं आप उस, मतलब वो फाइनेंस का सोर्स है, वहां से आप रेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन कंपेयर्ड विद द सोर्स ऑफ इक्विटी, बिकॉज द इंटरेस्ट ऑन डेट फाइनेंस इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंसेस। जब आप देखिए, जब आप लोन लेते हैं, आपका एक छोटा सा लेट से एग्जाम, आपका एक पेन बनाने का कंपनी है, ठीक है। आप रिफिल भरते हैं, सपोज रिफिल है ना, रिफिल रिफिल आता है ना पेन का, उसमें यस आप सर। रिफिल आप भरते हैं, उसमें इंक भरते हैं, आप इंक भरते हैं, उसका आपका बिजनेस है। अब आप उसको बिजनेस को बनाने के लिए आपने लोन लिया है। मान लीजिए मधुस्मिता रिफिल कंपनी है सपोज, या XYZ refill company is there. Now they have taken loan of let's say rupees 5 lakhs from State Bank of India, and they have to pay interest, है ना? उसमें इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा ना जी, हाँ 5 लाख सर। पे। जब आप हाँ बैंक में पैसा जमा करते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है। हाँ When you सर, deposit money क्रेडिट। in bank, do you get interest or not? यस सर, क्रेडिट इंटरेस्ट हाँ मिलता है So सर। similarly, when the bank has given loan to you, will they charge interest or not? यस सर। Yes, of course. So, whatever interest you are paying, that interest has to be shown in the profit and loss account under the head of expenses. ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस में आप दिखा सकते हैं उस इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस। तो अगर आपका इनकम जितना, जो भी इनकम आप बनाते हैं, इनकम हुआ है बिजनेस से, उसमें से एक्सपेंस में जो इंटरेस्ट घट रहा है तो उतना से प्रॉफिट भी तो घट रहा है ना। हाँ सर। समझ में आया कि नहीं पहले बताइए, क्या समझे आप बताइए पहले। व्हाट हैव यू अंडरस्टूड, टेल मी। सर जैसे कि आप जैसे एग्जांपल बता रहे थे कि 5 लाख का जो इंटरेस्ट अगर हम ले रहे हैं, इंटरेस्ट लोन ले रहे हैं बैंक से, एंड उसमें जो बेसिकली इंटरेस्ट तो लेगा ही वो। तो इसके आगे, इसके आगे का ही मुझे सुनना था, यहाँ तक तो आप बता पाते। इसके आगे का जो मैंने बता दिया, आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं एक एक वर्ड को सुनिए ध्यान से। मैंने कहा कि लेट्स से XYZ कंपनी इज formed by you, okay,
and you have taken a loan of rupees 5 lakhs from State Bank of India. Now they are charging interest on that amount, loan amount, and you are paying the interest as well as installment every month. ठीक है, फिर साल में जाकर के इंटरेस्ट का कुछ अमाउंट आएगा, 20,000, 25,000, 30,000, 40, कुछ तो आएगा हाँ सर। टोटल टोटल। तो वो टोटल जो अमाउंट है, मान लीजिए 50,000 इंटरेस्ट आपने पे किया एक साल में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब वो 50,000 कैन बी शोन in the profit and loss account under the head expenses, that this much expenses has been incurred, okay, for paying interest to the bank on loan. तो अगर आप एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं 50,000 से, तो आपका जो भी प्रॉफिट है ईयर एंड में, वो प्रॉफिट में तो कमी होगा ना। हाँ। कंफ्यूजन है या समझ में आया? नहीं सर, बट प्रॉफिट में कमी होगा, मतलब वो चीज समझ में नहीं आया। क्या चीज नहीं आया समझ में? सर प्रॉफिट, सर आपने बोला प्रॉफिट में कमी होगा। अरे भाई देखिए, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप साल भर जो कारोबार करते हैं, आप साल के एंड में जानना चाहिएगा कि एक साल काम किया हमने, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये तो जानना हाँ, चाहिएगा आप। वो तो जानना चाहेंगे। हाँ जानना चाहेंगे आप तो साल भर में आपने सेल्स भी किया है। सपोज आपका पेन बनाने का कंपनी है, हाँ लोकल 3 रुपया वाला पेन बनाते हैं आप, ठीक है। अब वो 3 रुपया वाला पेन बनाते हैं, उस साल में आपने लेट से आपने 10 लाख का पेन बेच दिया एक साल में। तो साल के एंड में आपको जानने का इच्छा नहीं होगा कि मुझे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। हाँ सर। तो उसके लिए बनाना पड़ेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेट से आपने 10 लाख का सेल किया, ठीक है। अब 10 लाख का सेल्स किया तो ऐसे ही हो गया, सेल्स बनाया और घर में बनाया और बिक गया मार्केट में, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं नहीं। उसके लिए आप तो दुकान गए, स्टेशनरी दुकान गए, किताब दुकान गए, कॉपी दुकान गए, जो राशन दुकान गए, सब जगह भैया ये मेरा पेन है, देखिए इसको ले लीजिए आप, ये अच्छा पेन लिखता है, जो भी बताइएगा आप। तो उसके लिए आप स्टाफ रखे हाँ कि नहीं? हाँ हाँ उसको सैलरी दिए कि हाँ नहीं? सर। हाँ उसको पेट्रोल अलाउंस दिए। तो ये सैलरी, पेट्रोल अलाउंस, ये जो आपका ये सब कॉस्टिंग हुआ ना, एक्सपेंसेस हुआ ना जी, हाँ एक्सपेंसेज हुआ। तो ये सब एक्सपेंसेज वो 10 लाख में से माइनस होगा कि नहीं? हाँ सर। तब ना एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। हाँ सर, वही मैं बोल रही थी कि इसमें जब प्रॉफिट कम कैसे आएगा, लाइक वो मुझे तो चेक कम करना होगा होगा जितना अगर एक्सपेंसेस होगा। लिसन लिसन लिसन, Yes, sir. 10 लाख एक साल में हमने 10 लाख का पेन बेच दिया, तो कोई पूछेगा मधुस्मिता कितना प्रॉफिट बनाया आपने, कितना इनकम किया तुमने? तो आप क्या बोलोगे कि मैंने 10 लाख रुपया बना लिया। 10 लाख बनाया आपने? 10 लाख नहीं बनाया, 10 लाख का सिर्फ सेल्स हुआ है। उसमें अब तो उसमें सुनिए एक मिनट, अब 10 लाख का सेल्स हुआ है, अब उसमें से मेरा 5 लाख का एक्सपेंसेज है, स्टाफ का सैलरी है, मशीन है, मशीन को चलाने का रिपेयरिंग है, दुकान भाड़ा में लिए हैं, एक ऑफिस या दुकान लिए हैं, उसका भाड़ा रेंट कट रहा है, बिजली बिल कट रहा है, ये सारा एक्सपेंसेज है। सारा एक्सपेंसेज जोड़ करके जो है, बैंक से लोन लिए हैं 5 लाख, तो वो उसका इंटरेस्ट जा रहा है, ये सारा एक्सपेंसेज 10 लाख में से माइनस होगा। तो अभी आपने कहा कि 10 लाख मेरा प्रॉफिट हो गया, ऐसा थोड़ी है। 10 लाख में से 5 लाख माइनस कीजिए, तब जो 5 लाख बचा, दैट इज योर प्रॉफिट। यू अंडरस्टूड और नॉट? हाँ सर। So by showing the interest in the profit and loss account, your profit has reduced or not? Tell me. हाँ From 10 lakhs to 5 lakhs. That's what I'm saying to you. यस सर, यही आया वाला समझ में? चीज जो मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आया था। अभी कि समझ like में आ गया ना? हाँ हाँ सर। मैं जो भी बोलता हूँ एक एक वर्ड को मार्क कीजिए, मैं डिफरेंट तरीका से आपको समझा देता हूँ, लेकिन ये सब चीज छोटा चीज है, यू शुड अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो अब उतना से जो मेरा प्रॉफिट कम हुआ, अगर मान लीजिए हम एक्सपेंसेस नहीं दिखाते तो 10 लाख पे हमको टैक्स देना होता सरकार को। हाँ लेकिन अब क्या होगा, सिर्फ 5 लाख पे टैक्स सर, देना होगा, हाँ देना होगा ना। हाँ तो सर।
तो टैक्स बेनिफिट ऑफ डेट, यही बात बोल रहा है पॉइंट में, यही अब क्या लिखा हुआ है कहानी है, आप पढ़ लीजिएगा। पॉइंट जो है टैक्स बेनिफिट ऑफ डेट। अब टैक्स बेनिफिट ऑफ डेट कैसे मिलता है, आ गया समझ में कॉन्सेप्ट? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। Flexibility is one of the most important and serious factors which is considered in determining capital structure. Flexibility in the firm's ability, flexibility क्या है जी? Ability to adopt the adopt its capital structure to the needs of changing condition. मैंने बताया ना, पहले भी डिस्कस किया मैंने, जो मार्केट का नीड है या आपका बिजनेस का नीड है या आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है या जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक सिनेरियो है, ठीक है, वो चेंज होता है। सेंसेक्स बढ़ गया, सेंसेक्स घट गया, आपका मान लीजिए रिफिल का ही कंपनी है तो इंक का दाम बढ़ गया, हो सकता है ना, आज जिस दाम से आप खरीदे हैं 2 महीने बाद जाइएगा तो उसका दाम बढ़ जाएगा, हो सकता है। हाँ, वो तो ये चीज। सब सारा कंडीशन का इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे ज्यादा नहीं हो, इसलिए हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी भी एक डिटर्मिनेंट फैक्टर है। Now control that we have already discussed that you should have control, debt रखेंगे ज्यादा कि इक्विटी रखें, डेट रखेंगे ज्यादा तो जो है अपना बिजनेस बिकने का वो संभावना है। इक्विटी रखेंगे ज्यादा, ज्यादा लोगों से इक्विटी के थ्रू कैपिटल रेज करेंगे तो आके बोलेगा भाई कि हमको मालिक मालिक बना दो कंपनी का, हम भी मालिक हैं, हम तो इतना शेयर खरीद लिए हैं तुम्हारा कंपनी का। तो इसलिए कंट्रोल भी एक डिटर्मिनेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री लेवरेज रेशियो। अब देखिए द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड बेंचमार्क। अब इंडस्ट्री है, मान लीजिए पेन बनाने का है आपका कंपनी, ठीक है। अब पेन में आपको सेलो पेन है, रोटोमैक पेन है, रेनॉल्ड्स है, ये सब है ना, छोटा छोटा पेन बनाता है, 5 रुपया 3 रुपया इस टाइप का पेन बनाता है और ज्यादा दाम का भी है। तो ये सब कंपनी जो आपका कंपटीटर कौन हो गया, रेनॉल्ड्स, सेलो और कौन सा नाम बताया मैंने, पार्कर, इस कौन सा, रोटोमैक्स करके आप। रोटोमैक है। तो ये सब आपका कंपटीटर हो गया। बेंचमार्क में देखना होगा कि बेंचमार्क में कितना प्रॉफिट बनाया, मतलब इंडस्ट्री का प्रॉफिट क्या है, इंडस्ट्री का लेवरेज रेशियो क्या है। लेवरेज मतलब इक्विटी कितना रखा है इंडस्ट्री में, ये सब कंपनी कितना रखती है कि इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना ब्रांड वैल्यू है, इतना सब कंपनी का जो है अच्छा चल रहा है सब, तो उसका क्या है हिसाब किताब, वो आपको देखना होगा। उसके हिसाब से आपको अपना कंपनी का बनाना होगा, तो लेवरेज रेशियो देखना होगा। फर्म कैन use industry leverage ratio as a standard for construction of capital structure because industry standard may be appropriate to the firm. It does not mean that all firms in the industry are having optimum capital structure. Put it simple, that they may be using more leverage or less leverage. मतलब ज्यादा लोन लेके भी वो कर सकता है, कम लोन लेकर के। देखिए बिजनेस के पीछे अब मान लीजिए कि पेन के पीछे अगर सपोज कोई लेट से गोदरेज है, आप भी फ्रिज बना रहे हैं, एक लोकल फ्रिज, तो गोदरेज से compete कर पाना आसान है क्या? नहीं है, नो। नहीं है। उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, ब्रांड वैल्यू है, तो उसका जो लेवरेज रेशियो है आप देखिएगा जरूर कि कैसे बनाता है, क्या किया है, लेकिन उसके पास जो टेक्निकल टीम है वो सब आपके पास नहीं है, तो आपका सिचुएशन क्या बोलता है बिजनेस, उस हिसाब से करना होगा। देन सीजनल वेरिएशंस, use of more or less financial leverage depends on the seasonal variations of the business. Low degree of finance, अच्छा ये leverage हम लोग पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको leverage का seasonal variations का, इसको पढ़ लीजिएगा अपने से। Now next point is, इसको पढ़िए तो आप, degree of competition। एक मिनट। degree of competition. Competition in the industry also determines the capital structure. When there is no or less competition, then the firms can use less equity or more debt in their capital structure since they can sell more products at higher prices. Example, public utility corporation like Gas, gas, electricity, etc. On the other hand, competitive firms have to use more equity in their capital structure because of competition. They may not be able to sell more units and cannot earn more profits. Example,
Garment industry, home appliances industry. देखिए, गारमेंट इंडस्ट्री में, होम अप्लायंसेज में क्या है, ज्यादा कंपटीशन है। इलेक्ट्रिसिटी में कम है। अब इलेक्ट्रिसिटी कौन बेचता है? टाटा पावर है एक, या झारखंड ऊर्जा निगम लिमिटेड है, यही है ना। हाँ सर। कोई कंपटीटर तो है नहीं, एक दो कंपनी, टाटा एक है। या पहले डीवीसी लाइन हुआ करता था, डीवीसी याद आ रहा है, डीवीसी लाइन होता था, सर डीवीसी। होता था ना पहले। हाँ सर। तो ये सब क्या है, तो इसमें कंपटीशन कम है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो गारमेंट मेकिंग कंपनी है या होम अप्लायंसेज है, इंडस्ट्री है, उसमें क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो पब्लिक यूटिलिटी कॉर्पोरेशन लाइक गैस गैस एटसेट्रा, इसमें क्या होता है, दे कैन सेल मोर प्रोडक्ट्स एट हायर प्राइसेस। ऑन द अदर हैंड, competitive products have to use more equity in their capital structure because of competition। तो यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा इक्विटी चाहिए। अगला पॉइंट पढ़िए, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। Industry life cycle. The industry life cycle consists of introduction stage, growth stage, maturity stage, and declining stage. The अब industry. किसी भी इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री, अब मैं बता देता हूँ आपको, अभी अभी एग्जांपल दूंगा आपको। मुझे पता नहीं, तुरंत एग्जांपल भी दिमाग में आ जाता है, बता देता हूँ। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री में होता है, स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, फिर ग्रोथ स्टेज होता है, वो फिर ग्रो कर जाता है बहुत ज्यादा, फिर मैच्योर हो जाता है, उसके बाद डिक्लाइन हो जाता है। अभी मैं बताता हूँ आपको, एक रेडियो रेडियो आपने देखा है? हाँ सर। अभी आप देखते हैं रेडियो? नहीं, अब तो बहुत कम ही यूज होता है। नहीं नहीं, अभी आपने देखा है कितने साल तक? नहीं, अभी आपने नहीं देखा है, कब देखा था आपने लास्ट फिलिप्स लास्ट का रेडियो? किसका सर? फिलिप्स लाइक। का रेडियो। पहले लोग विविध भारती सुनते थे, बीबीसी का न्यूज सुनते थे, सर। ठीक है। आजकल मोबाइल मोबाइल ही हो गया है रेडियो। हम्म। अभी रेडियो क्या हो गया, रेडियो एक टाइम में जब वर्ल्ड कप चल रहा था 1983 में, उस टाइम में सब रेडियो में ही सुनते थे मैच। और रेडियो में कमेंट्री ऐसा होता था कि लगता था कि लाइव देख रहे हैं। विविध भारती का गीत माला आता था, गाना सुनते थे लोग, ठीक है। तो हाँ सर। मनोरंजन का साधन वही था, सिर्फ एंटरटेनमेंट का क्या था, रेडियो। गांव गांव में, देहात में। फिर क्या आया, टीवी आया। टीवी में भी क्या, कैसा आया, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, अभी वो डिक्लाइन हो गया है। हाँ सर। रेडियो है, रेडियो एक टाइम में बहुत ग्रोथ किया। आज की डेट में रेडियो रेडियो अभी कोई एक सोचेगा कि रेडियो कंपनी खोले, रेडियो वाला बिजनेस, वो चलेगा बिजनेस? नहीं सर। नहीं चलेगा। कोई सोचेगा कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी टीवी बनाते हैं, चलेगा? नहीं। तो फिर पढ़िए, आगे पढ़िए। तो वही बताया मैं, इसका एग्जांपल कोई पूछेगा डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री का बताओ भाई, तो आप बता दीजिएगा रेडियो इंडस्ट्री, है ना। ठीक है। ठीक चलिए है। आगे पढ़िए। The industry in infancy should use less debt capital or more equity capital in capital structure, since the हाँ। profit earning capacity is less due to less sales. Whereas when a firm is in its growing stage and having हम्म, more profits, it can go for हम्म, more debt or less equity that helps to हम्म, maximize shareholder wealth. आ गया समझ में। एक और एग्जांपल है उसका, वो जो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है, पहले वीसीआर चलता था। अभी वीसीआर सुना है आपने, वीसीआर? Yes sir, हाँ है घर पे। ठीक है, पर वीसीआर चलता था। उसके अलावा बहुत सारा ऐसा इंडस्ट्री है, यू कैन थिंक एंड यू कैन कम आउट विद एन एग्जांपल, ठीक है। बहुत सारा चीज है ऐसा। ऑनलाइन क्लास कोई सोचा भी नहीं था कि ऑनलाइन क्लास हो सकता है ऐसे। कोरोना के बाद देखिए। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट यू रीड, एजेंसी कॉस्ट। Agency cost arises when there is a conflict of interest among owners, debenture holders, and the management. Conflict may arise due to the transferring of wealth to debt holders in their favor. The agency problem is handled through monitoring and restrictive covenants, which involve costs that are called agency costs. The financing strategy of a firm should seek to minimize the agency costs by way of employing an external agent who specializes in low cost monitoring. Management should yes. एजेंसी कॉस्ट अराइजेज व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग ओनर्स। जब ओनर्स का अपना इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तब एजेंसी कॉस्ट आता है।
ठीक है, ओनर्स, डिवेंचर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट में, इसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, किसमें किसमें, मैनेजमेंट में, डिवेंचर होल्डर्स में एंड ओनर्स में, तब एजेंसी कॉस्ट लगता है। कॉन्फ्लिक्ट में अराइज ड्यू टू द, क्या क्या हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट का कारण, may arise due to the transferring of wealth to debt holders in their favors। wealth को debt holders को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ये एक conflict हो सकता है। The agency problem is handled through monitoring and restrictive covenants which involves cost that are called agency cost। अभी मैं बताता हूँ आपको। सपोज एजेंसी कॉस्ट में एक ये भी हो सकता है कि कोई लीगल आपने कंपनी को हायर किया है, उसका सर्विस ले रहे हैं आप, तो ये एक एजेंसी हुआ। दैट अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर टेकिंग सम वर्क फ्रॉम एनी एजेंसी कंपनी, आउटसोर्स, यू हैव आउटसोर्स सम वर्क, वो एक एजेंसी हुआ। द फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी ऑफ ए फर्म शुड सीक टू मिनिमाइज द एजेंसी कॉस्ट। आपको कंपनी जो है खुद से काम करना पड़ेगा, और जो एजेंसी का जो कॉस्ट है शुड सीक टू मिनिमाइज द एजेंसी कॉस्ट, है ना। Yes, sir. By employing an external agent who specializes in low cost monitoring, management should use debt finance to the extent that it maximizes wealth of shareholders, not beyond that। उतना ही डेट आपको लगाना चाहिए बिजनेस में जिससे कि शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज होता है। नेक्स्ट पढ़िए, फटाफट पढ़िए। कैपेसिटी, कंपनी कैरेक्टरिस्टिक। Characteristics like size and credit standing among the other companies. Small firms' ability to raise funds from outside is limited when compared to large firms. Small firms have to depend on owners' funds for financing activities. In other words, investors perceive their investment in small firms is more risky than the large firms. On the तो यही other बता hand, रहा है कि जो, वही बता रहा है कि जो छोटा फर्म होता है उसको जो फंड रेज करने में दिक्कतें आती हैं, वो दे आर मेनली डिपेंडेंट अपॉन द ओनर्स, risky, ओनर्स yes. लार्ज फंड। बट जो बड़ा फर्म होता है उसको उतना दिक्कत नहीं आता है। टाइमिंग ऑफ पब्लिक इशू, बोलिए, पढ़िए। Timing of public officer is offer ऑफर। is also one of the most important factors considered while planning the capital structure. Public offering should be made at a time when that state of economy as well as capital market is ideal to provide the funds. For example, during 2003-2004 period, many firms like Vijaya Bank, IOB, Union Bank, TCS, IOC, and TPC come up with IPO due to ideal capital markets and the economy. ये बोल रहा है कि टाइमिंग ऑफ पब्लिक ऑफर, आप जो ऑफर निकाल रहा है हर दिन देखिएगा पेपर में कि आज ये कंपनी अपना ऑफर निकाल रही है, कल निकालेगी वो कंपनी, परसों वो निकालेगी। तो टाइमिंग, इस टाइम में ड्यूरिंग द ईयर 2003 to 2004 मेनी फर्म्स लाइक विजया बैंक, इंडियन बैंक, Indian Overseas Union Bank, TCS and other companies, they had come with IPO। IPO stands for Initial Public Offering, मतलब पहली बार जो शेयर इशू किया जाता है, दैट इज कॉल्ड IPO ड्यू टू आइडियल कैपिटल मार्केट एंड इकोनॉमी। उस टाइम में इकोनॉमी भी अच्छा था एंड आइडियल था फॉर व्हाट, कैपिटल मार्केट वाज आइडियल फॉर इशूइंग शेयर्स, IPO। प्राइसेज एज वेल एज यील्ड्स ऑन सिक्योरिटीज डिपेंड। यील्ड मतलब क्या होता है? यील्ड मतलब होता है रिटर्न, इतना जान लीजिए, ठीक है। हेलो, हाँ सर. हाँ। प्राइसेज एज वेल एज यील्ड्स ऑन सिक्योरिटीज डिपेंड ऑन द मनी पॉलिसी परसूड बाय द गवर्नमेंट। जो मैंने बताया कि मनी पॉलिसी किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, RBI का होता है। Scarcity of debt money and equity funds leads to high interest rates and low price earnings। P मतलब हो जाएगा प्राइस अर्निंग्स रेशियो, ठीक है। Therefore company has to decide whether the finance infancy stage, equity funds and later stage। ये आप इसको पढ़िएगा, मतलब 11, 12, 13, 14 पॉइंट पढ़िए। लेवरेज पढ़िएगा, टाइप्स ऑफ लेवरेज, और लेवरेज का नीचे में फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला भी याद कीजिएगा आप। आया समझ में? हाँ सर. हाँ, और ये मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं सवाल बनवाऊंगा। मतलब आपको क्या क्या पढ़ना है सुन लीजिए। पॉइंट नंबर 11, 12, 13, 14। अपार्ट फ्रॉम दैट लेवरेज इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। Specifically, you might be asked in the exam,
write the differences between operating leverage and financial leverage. Definitely this will come in your exam. 10 marks. Okay. Okay, sir. Theory. Theory. ठीक है, तो इसका हाँ फॉर्मूला याद कीजिए. उसके नीचे में एक एग्जांपल दिया है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस. ये क्रॉस हाँ क्रॉस सर। को क्रॉस समझिए. मैं अभी बता देता हूं. देखिए, सेल्स रेवेन्यू. सेल्स कैसे निकलेगा? यूनिट सोल्ड. जैसे मैंने बताया कि पेन पेन आप बेचते हैं, ठीक है, तो कितना पेन बेचा आपने और कितने रुपए करके बेचा, तो जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट में लिख देंगे, है ना. मान लीजिए 3 रुपया बेचा आपने, 100 पेन बेचा, तो कितना हाँ हो जाएगा? 300 रुपया. हाँ सर। 300 हो जाएगा. अब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या होता है? मान लीजिए 100. ऐसा हो सकता है कि आपका मशीन है, आप 50 पेन बना रहे हैं, तो जितना मटेरियल लगता है, हो सकता है ज्यादा. आप मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदने, 1 किलो फिश खरीदने का दाम है मान लीजिए कैसे 200 रुपये किलो, तो किलो बोलता है सपोज, बोलता है ना जी. हाँ सर। वहीं अगर आप 10 किलो लीजिएगा तो भी आपको क्या 200 रुपये देगा? 150 हो जाएगा. हाँ सर, कम होगा थोड़ा, कम लगाएगा। कम हो जाएगा. तो वेरिएबल कॉस्ट इज व्हाट? वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स टू सर्टेन एक्सटेंट. बट अभी मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं. मैं अगर पढ़ाता हूं एक क्लासरूम में, ठीक है, ट्यूशन पढ़ाता हूं मैं सपोज, ठीक है. अभी मान लीजिए एक स्टूडेंट अगर पढ़ेगा मेरा, तो मेरा जो लाइट का जो खर्चा है, पंखा का जो खर्चा है, एक स्टूडेंट पढ़ेगा तो मेरा जितना लाइट कंज्यूम करेगा, मेरा बिजली पावर, अगर उस क्लासरूम में, अगर या जहां मैं पढ़ा रहा हूं रूम में 50 स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा, तो भी उतना ही लाइट जाएगा. हाँ सर। तो ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट मतलब हो गया कि वो प्रोडक्शन चाहे कितना भी हो, दैट इज फिक्स्ड. बट वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स यू प्रोड्यूस. कम यूनिट प्रोड्यूस करने से कम खर्च होगा, ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने से ज्यादा खर्च होगा. दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट. जैसे मैंने मछली का भी एग्जांपल दिया कि 1 किलो का 200 रुपए और 10 किलो का 150 रुपए, 130 रुपए, ऐसे ही होता है ना. हाँ सर। तो अभी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट कैसे करेंगे? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट, जो आएगा उसको लिख दीजिए. अब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन. एग्जाम में आएगा, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? राइट द फॉर्मूला ऑफ कंट्रीब्यूशन. यू विल राइट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इज व्हाट? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. याद हो गया ना? हाँ सर। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरी गुड. अब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दीजिए. फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? जैसे मैंने बताया कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, मान लीजिए एक क्लासरूम में एक बच्चा पढ़े, एक स्टूडेंट पढ़े, तो मेरा जितना बिजली खर्चा होगा और पंखा का जितना खर्चा होगा, अगर उसमें 50 बच्चा भी पढ़ रहा है तो भी उतना ही बिजली खर्चा होगा. दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट. यस सर। इट डज नॉट चेंज एज पर द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट है. तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी. ठीक है. अब ईबीआईटी से माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट. इंटरेस्ट जो आपने बैंक से लोन लिया है उसको माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स. उसमें से फिर आप टैक्स माइनस कर दीजिए, तब क्या बचेगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स. अर्निंग आफ्टर टैक्स से माइनस कर दीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दीजिए. लास्ट में जो बचेगा तब वो हुआ अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर. दिस इज द फॉर्मूला. यू शुड लर्न इट बाय हार्ट. एंड दिस ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला, डिग्री ऑफ लेवरेज, ये आप कीजिए. और एक दो दोनों सम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. और डोंट बी लेट इन माय क्लास. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास प्लीज डोंट बी लेट. ठीक है, बी ऑन टाइम, बी ऑन टाइम. ठीक है, चलिए, ओके, बाय. थैंक यू सर.